Good morning, student. Good morning, student. Uh, so we'll continue. Okay. Welcome to Dr. Vasam Ambedkar Mahavidyalaya Vasavis TYBS 86 SEMS. Subject is Principle of GIS presented by Assistant Professor Vivin B. Vaity. So we will continue with your GIS topic. That is a second unit. We are completing up to यहाँ तक आ चुका था टाइम ये होगा था database management, GIS software, hardware, spatial data, hardware database management right? DBMS यहाँ तक आप आए थे बराबर है? So we'll continue with this topic and then we'll complete that DBMS and then we'll go to that. So what is DBMS? Already आपको पता है DBMS is a database management system. Yes, student. Hello. Hello. Yes, sir. Yeah. So already we know the database management system. So many database software we have done. Microsoft Access, MySQL, SQL, Oracle. We have done that DBMS. So it is a large computerized collection of structured data. What is structured data? Is a table data. It's called a structured data. There is a rows and columns data. We are keeping the record. It is called a structured data. And the database management system is a software package that allows the user to set up, use, and maintain the database. So we are using here also. We are using the database. We can use the Excel also. We can use to keep the record. Where we can use the MySQL, where we can use the SQL, where we can use the Oracle. So Oracle is a RDBMS. We can use relational database management system. Designing a database is not an easy task. Firstly, one has to consider carefully what the database purpose is and who its users will be. Secondly, one needs to identify the available data source and define the format in which the data will be organized within the database. So firstly, we have to consider carefully what database purpose is. मेरा क्या purpose है, मेरा use क्या होने वाला है उस database को लेके students का data collect करके what is the use of database. So we can create mark sheet, we can create attendance, we can create result, etc. etc. So this is all that things are their purpose. Who its user will be. User कौन होगा, देखने वाला कौन होगा, करने वाला कौन होगा, बनाने वाला कौन होगा. तो secondly, one needs to identify the available data source and define the format. Then we have to see that available data source कहाँ से मुझे डेटा, जैसे अभी हम लोग डेटा सोर्स क्या ले ले, SHP फाइल इज योर डेटाबेस फाइल, शेप फाइल, कि हम लोग को डेटाबेस ग्राफिकली लगने वाला है और ग्राफिक में शेप्स होते हैं और शेप्स में हम लोग को शेप फाइल, रास्टर इमेज और वेक्टर ग्राफिक्स होता है. तो वो फॉर्मेट, डिफाइन द फॉर्मेट इन विच डेटा विल बी ऑर्गेनाइज्ड विद इन द डेटाबेस. So this format is usually called a database structure. Okay, उस फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस स्ट्रक्चर. Lastly, data can be entered into the database and it is important to keep the data up to date. Lastly, हम लोग को क्या करना पड़ता है, डेटाबेस स्टोर करना पड़ता है, एंटर करना पड़ता है, बट वो रखने के लिए वी हैव टू डेटा अप टू डेट रखना पड़ता है. जैसे न्यू डेटा इज ऑलवेज अप टू डेट. नया डेटा है, नया फाइल में कुछ हम लोग ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल में लिखा तो अप टू डेट. इट इज देयर फॉर it is therefore wise to set up the process for this and make someone responsible for regular maintenance of the database. इसलिए हम लोग को DBA की जरूरत होती है जो रेगुलर डेटाबेस को मेंटेन कर सके.
Documentation of database designed and set up the crucial for an extended database life. डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटाबेस बनाते हो, ये फील्ड किसके लिए यूज हो रहा है, वो किसके लिए यूज हो रहा है, ऐसे डॉक्यूमेंटेशन अगर बनाते हो तो हम लोग वो डेटाबेस का लाइफ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दूसरा भी कोई यूजर आ गया तो उस डेटाबेस को कंटिन्यू एक्सटेंड कर सकता है. DBMS offer generic functionality for database organization and data handling. DBMS offers always functionality to create the database, delete the database, और यहाँ functionality भी दिया हुआ है. That is for organizing and data handling. So this package offers a set of function and the capacity to store terabytes of informations. बहुत सारा data, हम लोग large amount of data रख सकते हैं. Reason for using DBMS. It supports storage and manipulation of very large data sets. Of course, some data set are so big. अब देखते हो अभी ग्राफिकल डेटा है तो बहुत ज्यादा डेटा रहेगा, तो स्टोरिंग देम इन टेक्स्ट फाइल, तो उसको टेक्स्ट फाइल या स्प्रेडशीट फाइल मतलब एक्सेल फाइल, इट बिकम्स टू ऑकवर्ड ऑकवर्ड फॉर यूज इन प्रैक्टिस, बराबर ना. टेक्स्ट डेटा में या एक्सेल में रखना उसके लिए ऑकवर्ड होगा. सो रिजल्ट में बी in that finding simple fact that takes minute and performing simple calculation perhaps even hours. एक विद इन थोड़े टाइम्स में हम लोग को वो रिजल्ट प्रोड्यूस करना पड़ता है, फाइंडिंग करना पड़ता है, सिंपल फैक्ट जो भी है वो. सो इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर दिस पर्पज. तो इसलिए आप देखते हो कि आपका भी टेबल, आप प्रॉपर्टीज में जाके उसके डेटा इंफॉर्मेशन निकालते हो और विद इन अ सेकेंड मुझे वो इंफॉर्मेशन मल्टीप्लेट होती है, स्टोर होती है, वो टेक्स्ट फाइल होती है या कभी एक्सेल फाइल होते हैं, तो आपका शेप फाइल एक्सेल फाइल में कन्वर्ट होता है, वो CSV फाइल बनाता है. CSV मालूम है आपको, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, पता है ना, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू. ये हम लोग टेक्स्ट फाइल में डेटा क्रिएट हो जाता है और वेरी लार्ज, और वो CSV फाइल वो किसी भी मशीन में हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो बहुत छोटा फाइल होता है, तो इजीली वी कैन एक्सेस एंड इन एक्सेल वी कैन व्यू दैट फाइल. तो ये फाइल हमारा DBMS सपोर्ट स्टोरेज मैनिपुलेशन ऑफ वेरी लार्ज डेटा सेट विद इन अ सेकेंड. So it can be instructed to guard over data correctness. लेकिन उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उसको करेक्टनेस डेटा होना चाहिए. फॉर इंस्टेंस एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेटा करेक्टनेस इज डेटा एंट्री चेकिंग. जो डेटा एंट्री करता है उसको चेक होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए, इंश्योरिंग दैट द डेटा इज एंटर इनटू द डेटाबेस, इट डज नॉट कंटेन ऑब्वियस एरर. उसके अंदर एरर नहीं होना चाहिए. So that rule check in DBMS is known as a integrity constraint. उसको हम लोग integrity constraint बोलते हैं. Constraint मतलब true data we have to enter that according to condition. So that can be defined in and automatically checked by a DBMS. So DBMS has to know the integrity constraints. तो वो constraints हम लोग conditions automatic उस डेटाबेस को दे सके. सो मोर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आर सर्टेनली पॉसिबल. कोई कोई कॉम्प्लेक्स इंटीग्रिटी हो सकता है. सो देयर डेफिनेशन इज अ पार्ट ऑफ डिजाइन ऑफ डेटा. सो दिस इज कॉल्ड गार्ड ओवर डेटा करेक्टनेस. फिर DBMS सपोर्ट द concurrent use of the same data set by many users. Duplicate data. Large data sets are built up over time, which means that substantial investments are required to create and maintain them. So that probably many people are involved in the same data collection. सेम डेटा आपको बोला सबको बोला, तो सब लोगों ने थोड़ा बहुत डेटा सेम डेटा अप्लाई किया. कोई भी किसी को बोला कुछ फाइल लेके आओ, तो आप सेम फाइल लेके आओगे सेम. तो डेटा कलेक्शंस में बी डुप्लीकेट. Okay, maintenance and processing. So these data sets are often considered to be high strategic value of owners, which is why many may want to make use of them within an organizations. So moreover, for different user for the database, different views on the data can be defined. जो दूसरा different users का data रहेगा वो different view में हम लोग define कर सकते हैं. ये DBMS क्या है? So in this way, user will under the impression that they operate on their personal डेटाबेस. तो उनको लगेगा कि वो अपने पर्सनल डेटाबेस में काम कर रहे हैं. हमेशा वो डेटा अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है. सो नॉट वन शेयर्ड बाय मेनी पीपल, दे मे ऑल बी यूजिंग द डेटाबेस एट द सेम टाइम. जब आप लोग एक टाइम में वो सारे एक साथ वही डेटाबेस देख रहे होंगे विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर एक्टिविटीज. सो दिस DBMS फंक्शन इज कॉल्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल. जैसे गूगल में आपने रिजल्ट देखा, तो वो रिजल्ट या यूनिवर्सिटी की साइट वो सब लोग ही ओपन करते हैं, तो उसमें कॉन्करेंसी कंट्रोल होना जरूरी है.
बोले आपको दिखाया हुआ डेटा अलग, उसको दिखाया हुआ डेटा अलग, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके लिए कॉन्करेंसी कंट्रोल होना चाहिए। DBMS प्रोवाइड हाई लेवल डिक्लेरेटिव क्वेरी लैंग्वेज। इसके अंदर क्वेरी दे सकते हैं, जैसे एसक्यूएल के सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो हम लोग यूज करते हैं, सिलेक्ट क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, जो हम लोग यूज करते हैं, दैट क्वेरी लैंग्वेज वी कैन यूज इन हाई लेवल। हाई लेवल में इंग्लिश लाइक लैंग्वेज हम लोग लिख सकते हैं। तो क्वेरी इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस दैट मीट द कंडीशन इंडिकेटेड इन द क्वेरी। DBMS सपोर्ट द यूज फॉर डेटा मॉडल। वो मॉडल भी यूज करता है आजकल, डेटा मॉडलिंग चल रहा है। डेटा मॉडल इज लैंग्वेज विथ विच वन कैन डिफाइन अ डेटाबेस स्ट्रक्चर, manipulate data stored in it directly, and the commonly used data model in relational data model। वो ज्यादातर रिलेशनल, एक टेबल है दूसरे टेबल से रिलेशन क्रिएट करते हैं, अपने आप डेटा रोज और रिकॉर्ड्स मर्ज हो जाता है। और प्रिमिटिव टुपलेस, टुपलेस बताता है, जैसे हम लोग डॉट नेट में हम लोग इनबिल्ड एसक्यूएल डेटाबेस जो हम लोग क्रिएट कर रहे थे, उसके अंदर हम लोग ने टेबल दे दिया, रिकॉर्ड दे दिया, वो अपने आप और ट्यूपलेस के थ्रू वो रिकॉर्ड मर्ज हो गया। तो दैट रिलेशन विल सेट ऑफ सिमिलरली फॉर्म्ड एज अ टुपले। टुपले मतलब फील्ड्स, जो हम लोग के फील्ड्स होते हैं वो। इज ऑल्सो कॉल्ड, वी कैन कॉल द रिकॉर्ड्स और रूट। जो फील्ड वैल्यूज हम लोग एक साथ फिल करते हैं वो एट्रीब्यूट वैल्यूज होते हैं, और उस वैल्यूज को हम लोग कैसा फॉर्म करते हैं विथ फील्ड। तो ऊपर हम लोग हेडिंग देते हैं, टुपलेस क्रिएट करते हैं, एंड नीचे हम लोग वो रिकॉर्ड लिखना चालू करते हैं। DBMS includes data backup and recovery function। आजकल DBMS में बैकअप फैसिलिटी ली हुई है। मतलब क्या कि वी कैन कीप द रिकॉर्ड, अगर किसी ने डेटाबेस डिलीट किया तो बैकअप इट इज देयर। रिकवरी फंक्शंस यूज हो जाता है, यानी कि बैकअप, एक बैकअप में DBMS रखा जाता है ताकि आप वापस उस डेटा को देखना चाहते हो तो देख सकते हो, रिकवरी कर सकते हो। तो दिस फंक्शन इंश्योर दैट अवेलेबिलिटी एट ऑल टाइम्स। मतलब DBMS में आपने देखा होगा, डिलीट करते हैं तो वो परमानेंट डिलीट नहीं होता। वी कैन जब तक हम लोग पैक कमांड देते नहीं है, कंप्लीट करते नहीं है, कमिट करते नहीं है, तब तक वो कमांड्स पूरा तरह सेव नहीं होती है। So as a potentiality, many users rely on the availability of data. Data must be safeguarded against possible calamities. रेगुलर बैकअप ऑफ द डेटा, जैसे आपने अपना पासवर्ड भूल गए, आपका ईमेल आईडी भूल गए, तो भी रिकवरी होता है बिकॉज ऑफ दैट DBMS। DBMS में रेगुलरली बैकअप और रिकवरी सिस्टम दिखा होता है। रेगुलर बैकअप्स ऑफ द डेटा सेट एंड ऑटोमेटिक रिकवरी स्कीम प्रोवाइड एन इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस ऑफ डेटा। DBMS अलाउज द कंट्रोल, कोई कोई उसका इंश्योरेंस करता है रिकवरी के लिए। ओके, DBMS डेटाबेस इसलिए परचेस करता है जगह और वहां पे डेटा रखा जाता है। इट अलाउज द कंट्रोल ऑफ डेटा रेडुडेंसी। डेटा रेडुडेंसी ऑलरेडी आपको पता है, इट इज वेल डिजाइंड डेटाबेस टेक केयर ऑफ स्टोरिंग सिंगल फैक्ट ओनली वंस, स्टोरिंग एंड फैक्ट मल्टीपल टाइम्स, फिनोमेनन नोन एज द डेटा डुप्लीकेशंस। डेटा मल्टीपल टाइम स्टोर होगा, इसका मतलब डेटा रेडुडेंसी आएगा। इट कैन लीड टू सिचुएशन, मतलब जैसे हम लोग आजकल होता है वो कॉपी फोल्डर किया तो कॉपी करके दूसरा नाम आ जाता है, कॉपी करके लिख के आता है। तो डेटा रेडुडेंसी वो अवॉइड करता है। ओके, देखा होगा आपने, फोल्डर कॉपी करते हो उसी जगह पे पेस्ट करते हो तो आपको उस फोल्डर का नाम और बाजू में अभी कॉपी करके लिख के आता है, कॉपी मतलब डुप्लीकेट हुआ है। So it can lead to situation in which store facts may contradict each other, causing reduced usefulness of the data, and redundancy however is not necessarily always problematic, so as long as we specify where it occurs and so that it can be controlled for। और उसको कंट्रोल कर, अगर आप लोग को मिलता है वो redundancy duplication, तो उसको हम लोग को कंट्रोल करने आना चाहिए, डुप्लीकेशन अवॉइड करने आने चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड। अल्टरनेटिव्स फॉर डेटा मैनेजमेंट, decisions whether or not use a DBMS, it will depend among other things। जब हम लोग DBMS यूज नहीं कर रहे हैं तो it depend on the other thing, on how much data there is or will be, what type of use will be made of it, and how many users might be involved। ये सारी चीजें सोचनी पड़ती है कि यहाँ डेटा कितना साइज का है, देर इज, और इट विल बी व्हाट टाइप, वो कौन किस टाइप का डेटा है, फॉर्मेट क्या है उसका, इट विल बी मेड अप ऑफ इट विच सॉफ्टवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर का फाइल्स हैं, हाउ मेनी यूजर्स, उसके अंदर कितने यूजर्स इन्वॉल्व होंगे। सो व्हेन द डेटा सेट इज स्मॉल, इट्स यूज रिलेटिवली सिंपल, but with just one user we might use simple text file and text processor। think of a personal address book, अगर आपने एड्रेस बुक देखा अपना पर्सनल, तो और स्मॉल सेट ऑफ simple field of observation, text will offer no support for data analysis whatsoever except perhaps in alphabetical sorting। Okay,
तो हम लोग एड सिंपल एड्रेस भी देखते हो तो उसको सॉर्टेड ऑर्डर में हम लोग जल्दी उसको एक्सेस कर सकते हैं। इफ योर डेटा सेट इज स्टिल स्मॉल न्यूमेरिक बाय नेचर, अगर आपका थोड़ा स्मॉल डेटा है तो हम लोग नंबर वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। वो वी हैव अ सिंगल टाइप ऑफ यूज इन अ माइंड एंड स्प्रेडशीट प्रोग्राम विल सफिस, इसमें स्प्रेडशीट प्रोग्राम सफिस हो जाता है। दिस माइट बी केस इफ यू हैव अ नंबर ऑफ फील्ड ऑब्जर्वेशन विद अ मेजरमेंट, वो मेजरमेंट में होगा तभी, तो दैट वी वांट टू प्रिपेयर फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। फॉर एग्जांपल इफ यू कैरी आउट रीजन और नेशन वाइड सेंसर, देखो यहाँ पे रीजन और नेशन वाइड सेंसस देखने विथ मेनी ऑब्जर्वेशन स्टेशन, बहुत सारे स्टेशन से ऑब्जर्वेशन करना है और फील्ड ऑब्जर्व करने हैं, so that time all sort of different measures one quickly needs a database to keep a track of the data। अगर डिफरेंट मेजरमेंट रहेगा, वन हम लोग ने किया भी रोड्स, रेल रोड्स हम लोग ने किलोमीटर में देखा, तो डेटाबेस रखने के लिए करने के लिए वो इजी हो गया। इट शुड आल्सो बी नोटेड दैट स्प्रेडशीट डू नॉट अकोमोडेट कॉन्करेंट यूज ऑफ डेटा सेट वेल, although they do support some data analysis and especially when it comes to calculate over a single table, फिर उसको थोड़ा सा एनालाइज करके कैलकुलेशन करके सिंगल टेबल में कन्वर्ट करना होता है, लाइक एवरेजेस, सम्स, मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू, इस तरह का कैलकुलेशंस करके उसको वो डेटा रखना पड़ता है एक्सेल शीट में। So all such computation are usually restricted to just a single table of data. So when one wants to relate the values in the table with values of another nature in some other table, some expertise and significant amount of time are usually required to make this happen। तो ये करने के लिए हम लोग को इस तरह का डेटा नेचुरली एक्सपर्टाइज होना चाहिए, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम होना चाहिए, तो ही हम लोग वो मेंटेन कर सकते हैं। मतलब जस्ट लाइक दोज हु नो द नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज, दे कैन मेंटेन द डेटा इजीली और स्पेसिफिक टाइम में वो आपका डेटा मेंटेन करेंगे। नाउ दे आर गिविंग रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, हम लोग को मॉडल की जरूरत है। रिलेशनल मतलब एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा एक्सट्रैक्ट करना या एक दूसरे से रिलेटिव डेटा एक्सेस करना, उसको हम लोग जैसे हम लोग प्राइमरी की फॉरेन की देते थे, वो किसके लिए देते थे? टेबल रिलेशनशिप क्रिएट करने, वन टेबल वन टू वन रिलेटेबल रिलेशनशिप करते, वन टू मेनी टेबल कर सकते, मेनी टू मेनी हो सकता है। तो दिस रिलेशनशिप मॉडल इट इज गिवन ओवर देयर। Now always DBMS have the relational model, the structure that will be used to store the database data that is stable. It is integrity constraint are there. What is integrity constraint? That is primary key is your integrity constraint। हर एक डेटाबेस को एक प्राइमरी की दिया जाता है, मतलब हम लोग डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनाते हैं तो जितने भी टेबल बनेंगे उसको प्राइमरी की सेट किया जाता है। प्राइमरी की इज अ वन फील्ड विच इज यूनिक, इट कैन नॉट बिकम डुप्लीकेट, बराबर ना, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो दैट स्टोर डेटा हैज टू, अगर आपने कुछ प्राइमरी की नहीं दिया तो डेटाबेस में आईडी करके जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, इसलिए आईडी इज बाय डिफॉल्ट आईडी 1 2 3, उससे एटलीस्ट वो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्रिएट कर सकता है। दैट इज द स्टोर डेटा हैज टू बी ओबे टू ऑल मूवमेंट्स इन अ टाइम। सो कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू मैनिपुलेट दैट डेटा फॉर द relational data model, the structure used to define a database are attribute, tuples and relation। ऑफ कोर्स डेटाबेस कैसे मेंटेन किया जाता है? एट्रीब्यूट्स, ट्यूपलेस एंड रिलेशन। हम लोग एट्रीब्यूट्स फील्ड नेम ऊपर देते हैं, ट्यूपलेस रिकॉर्ड फील्ड की वैल्यूज लिखते हैं, ट्यूपलेस रिलेशनशिप उस वैल्यू के साथ दूसरे टेबल में मैचिंग करते हैं और उस टेबल को मर्ज करके फॉरेन की सेट करते हैं। फॉरेन की इज अ what it is a one variable value who are matching with the another table, that is called we can create a foreign key। तो हम लोग एक दूसरे टेबल को रिलेशनशिप करने के लिए पहले टेबल का वैल्यू दूसरे टेबल के वैल्यू से मैच करके मर्जिंग करते हैं या रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग फॉरेन की बोलते हैं और फॉरेन की दे सकते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स आइदर परफॉर्म डेटा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द डेटाबेस विदाउट अल्टरनेटिंग इन विच केस वी कॉल देम क्वेरीज। अगर आपको कुछ भी अल्टर ना करते हुए एक्सट्रैक्ट करना होगा डेटा, तो उसके लिए हम लोग क्वेरी लिखते हैं, फॉरेन की प्राइमरी की सेट करते हैं और उस क्वेरी के थ्रू हम लोग डेटा एक्सेस करते हैं। वी कॉल देम इन क्वेरीज और दे चेंज द डेटाबेस कंटेंट एंड वी स्पीक अपडेट ऑन ट्रांजैक्शन। उससे हम लोग जैसे बैंक में हम लोग हमारा अकाउंट खोलते हैं, उसका ट्रांजैक्शंस आप दूसरे बैंक में भी उसका लिंकिंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? तो बिकॉज वी आर गिविंग ऑल द इंफॉर्मेशन इनसाइड द बैंक। बैंक में अपने डिटेल्स दिए हुए, आपका अकाउंट होल्डर नेम,
आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, वही बैंक में दूसरे बैंक में जाके लोन ले रहे हो तो वो पहले बैंक के अकाउंट के बारे में पूछेगा, और उस अकाउंट को आजकल इंटरनेट बैंकिंग से है तो अपडेटेड डेटा आपको मिलेगा। अगर आपने पहले भी कोई लोन लिया रहेगा तो आपको वो लोन वापस मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका लोन रिपेड है। आपको रीपेमेंट जब तक करते नहीं है तो दूसरा लोन नहीं मिलेगा। तो दिस इज द कैपेसिटी, और सम अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट्स का ही लोन देगा, सारे अमाउंट का लोन नहीं ना देगा, उसके लिए कुछ लिमिटेशंस रखे हुए हैं। तो व्हाट इज दैट, दे रिक्वायर द प्राइमरी की टू कंटेन विद सेट टू द फॉरेन की, और फॉरेन की से हम लोग को पता चल जाता है कि वो वैल्यू मैचिंग है। तो हम लोग ने अकाउंट का नाम दिया तो अपडेटेड डेटा मिलने से हम लोग, जैसे हम लोग ट्रांजेक्शन यूपीआई आजकल जनरेट करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप देख सकते हैं यूपीआई कोई भी ऐप में आप क्रिएट करते हैं, उससे रिलेशनशिप क्रिएट करके बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ जाता है। सो दिस आर ऑल दैट थिंग्स आर देयर रिलेटेड टू रिलेशनल मॉडल। यहाँ पे देख सकते हो कि पार्सल करके आया हुआ है, लार्ज एरियाज दिए हुए, जोन दिन दिया हुआ है, पिन नंबर दिया हुआ है, वही पिन नंबर यहाँ पे भी है। कुछ पिन नंबर मैच हो रहे हैं, जैसे 4 मैच हो रहा है, यहाँ पे डबल आ रहा है तो वहां दिखा रहा है। तो कुछ परसेंटेज पार्सल टू ओनर हम लोग देख रहे हैं, तो कुछ परसेंटेज बताया हुआ है, और ओनर के नए दिए हुए नंबर दिए हुए हैं, और ओनर का आईडी भी यहाँ पे मैच हो रहा है, और कौन ओनर, तो हम लोग को पता चल रहा है कि डेस्टिनेशन जहाँ पे पहुंचने वाला है वो किधर पहुंचने वाला है, कितने परसेंट तक डेटा पहुंचा हुआ है। पार्सल कुरियर वाला ऐसे ही ट्रैकिंग कर रहा है। आपकी ऑर्डर भी ट्रैक होती है, आपको पता होगा, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑर्डर ट्रैक होती है। सो अबाउट डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ 3 टेबल, one for storing parcel details, one for mapping parcel to its owner, and third one store for owner details. So that is the example, it is the relationship between the 3 table। ओरिजिनल डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक हम लोग को पार्सल्स कहाँ पे पहुंचा है वो मैपिंग कर सकते हैं, यही चीज उन्होंने बताई हुए। तो व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज टुपलेस एंड व्हाट इज एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीजें बताई हुए। यू अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. डीबीएमएस वेरी इंपॉर्टेंट, डीबीएमएस ये ऑलरेडी हो चुका है, बट आपको इसमें हम लोग को डेटा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव डेटा है, वेक्टर डेटा है, उसको रखने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए टेक्स्ट फाइल, एक्सेल सीएसवी फाइल बनाना पड़ता है, तो वो किस तरह हम लोग को मेंटेन होगी वो बताया हुआ। तो वो आगे आके प्रैक्टिकली, यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल दिया नहीं है, इट्स ओनली थेरेटिकल पार्ट में टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, प्रैक्टिकल सेशन तो मैनुअल में जैसे दिया है वही आपको है। So relational tuples and attributes. In relational data model, database is viewed as a collection of relation, commonly known as a table. Table हमेशा relations database हम लोग जो view करते हैं वो table में होता है। Table और relational is itself a collection of tuples. वो हमेशा record, collection of record होता है, बराबर। collection of tuples मतलब collection of rows, collection of record. In fact, each table is collection of tuples that are similarly shaped. वो similarly shaped में होते हैं, बराबर। मतलब टेबल सिमिलरली शेप मतलब उसके अंदर जितने फील्ड वैल्यूज होंगे वो सब रिकॉर्ड्स के लिए सेम वैल्यूज हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। मतलब सेम वैल्यूज आर डिफरेंट बट सेम शेप्स में होते हैं। सो ट्यूपले हैज अ फिक्स नंबर ऑफ नेम फील्ड, इसके लिए फिक्स नंबर ऑफ नेम फील्ड्स होता है, उसको हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। ट्यूपले के अंदर, रोज के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर फिक्स नंबर ऑफ नेम फील्ड्स होते हैं, फील्ड वैल्यूज फील्ड्स होते हैं, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। ऑल ट्यूपलेस इन द सेम रिलेशन हैव द सेम नेम फील्ड, सबके अंदर और सेम रिलेशनशिप होता है, हैव द सेम नेम फील्ड। जिसके अंदर नेम फील्ड सेम होता है उसके अंदर रिलेशनशिप सेम होता है। बट एट्रीब्यूट द नेम फील्ड ऑफ टुपले इन विच टुपले एसोसिएट वैल्यू द टुपले एट्रीब्यूट वैल्यू। उसके अंदर जो रिकॉर्ड के अंदर हम लोग वैल्यू लिखते हैं वो एसोसिएटेड वैल्यूज होते हैं, एंड दैट टुपले एट्रीब्यूट वैल्यूज, उसको हम लोग एट्रीब्यूट वैल्यूज बोलते हैं। When a relationship is created, जब भी हम लोग रिलेशनशिप बनाएंगे तो मोस्ट प्रोवाइड अ नेम फॉर द रिलेशंस, हम लोग उसको नाम देंगे रिलेशन को। मस्ट इंडिकेट विच एट्रीब्यूट इट विल हैव, उससे हम लोग किसके एट्रीब्यूट से हम लोग लिंक करें, इट विल हैव वो दिखाएंगे, इंडिकेट करेंगे। मस्ट सेट द डोमेन ऑफ ईच एट्रीब्यूट, उसके अंदर डोमेन देंगे ईच एट्रीब्यूट के लिए। तो रिलेशन डेफिनेशन ऑब्टेन इन दिस वे नोन एज द रिलेशन स्कीमा। जैसे ऐसे रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे उसको हम लोग रिलेशन स्कीमा मॉडल बोलते हैं, द रिलेशन स्कीमा मॉडल ऑफ दैट रिलेशन। सो द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन स्कीमा इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेटाबेस डिजाइन। हम लोग कोई भी डेटाबेस में रिलेशनल स्कीमा इज ए इंपॉर्टेंट part in a database design. So relation schemas together make up the database schema, and that schema are stable
and will rarely change over time. उस जो रिलेशन स्कीमा इस तरह रिलेट क्रिएट होता है वो थोड़ा फिक्स होता है. इट कैन रेयरली चेंज ओवर टाइम. दिस इज नॉट ट्रू फॉर टुपलेस स्टोर इन अ टेबल. लेकिन वो उसी तरह टुपलेस जैसे स्टोर होते हैं वैसा नहीं होता है. टुपलेस चेंज होते हैं, रिकॉर्ड चेंज होता है, typically are often changing either because new tuplets are added, others are removed. नए रिकॉर्ड आ गए और दूसरे रिमूव हो गए तो इट अदर विल सी चेंजेस इन देयर एट्रीब्यूट वैल्यूज आल्सो. तो इस टेबल में भी ऑटोमेटिक चेंजेस आएगा. मतलब आपने दो टेबल को मर्ज करके एक टेबल बनाया, जैसे ही इधर दो टेबल का रिकॉर्ड चेंज होगा वहां पे भी रिकॉर्ड चेंज होगा. So the set of tuples in relation at the same point in a time is called a relational instance at the moment. And this tuples set is always finite. वो finite set होता है. It is possible to count how many tuples there are. जैसे हम लोग बोला है सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000, सो उसका रिकॉर्ड होगा. तो वो क्वेरी के वजह से जो रिकॉर्ड रेडी हुआ वो रिकॉर्ड यहाँ पे जैसे वैल्यू चेंज होगा रिकॉर्ड में वैसे ही वो रिकॉर्ड वहां पे भी चेंज होगा. एंड दैट इज पॉसिबल टू काउंट हाउ मेनी टुपल्स देयर आर. Finding tuples and building links between them. Database systems are parts particularly good at storing large quantities of data. The DBMS must support quick searches amongst many tuples. This is why the relation data model uses the notion of a key. And key of a relationship comprises one or more attributes. A value for these attributes uniquely identifies a tuple. If we have a value for each of the key attributes, we are guaranteed to find no more than one tuple in the table with that combination of value, such that there is a no tuple for the given combination. Every relation has a key. What is key? Key, primary key, foreign key. So key of relation cover one or more attribute. बराबर एक या एक से ज्यादा attribute हम लोग कहते हैं. But key primary key unique होता है. So value of this unique identifies is this primary key, primary main key. Foreign key which is a match to the another table key. So वहाँ पे दूसरे keys होते हैं. So if we have a value for each of the key attribute, we are guaranteed to find no more than one tuple. वो एक tuple से ज्यादा नहीं है वहाँ. So with that combination of values such that there is a no tuple for the given common, every relation has a key. So tuple can refer to another tuple. इसलिए उसको refer दूसरा tuple करना पड़ता है by storing that tuple's key value, foreign key. And this attribute is called a foreign key. हम लोग को पहले वाले टेबल में एक से एक ही मतलब डुप्लीकेट एट्रीब्यूट वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते, इसीलिए वो की प्राइमरी की होती है. इट हैज अ वन की. बट जब हम लोग दूसरे की से वो मैचिंग करना चाहते हैं तब उसको फॉरेन की बनाया जाता है, बिकॉज इट रेफर्स द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन. टू टुपल्स ऑफ द सेम रिलेशन इंस्टेंस कैन हैव आइडेंटिकल फॉरेन की वैल्यूज. क्वेरिंग रिलेशन डेटाबेस. तो यहाँ पे क्वेरिंग रिलेशनल डेटाबेस होता है. क्वेरी व्हाट? Extracting the data, we are writing the conditions, that is called query. So in computer program that extract data from the database that meet the condition indicated in the query. First query operator tuple selection. पहले हमेशा tuple selection होता है. It works like a फिल्टर की तरह हम लोग एक्सेल में कैसे फिल्टर करके डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं वैसे ही हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं. इट अलाउज टू प्लेस टू एंड मीट द सिलेक्शन कंडीशन टू पास. जो कंडीशन जैसे सैलरी ग्रेटर देन 5,000 तो उतना ही रिकॉर्ड दिखाएगा. 10 रिकॉर्ड हो, 100 रिकॉर्ड हो. हाँ, जैसे डिस्टेंस लेस देन 1,000 तो उतना ही हम लोग को रिकॉर्ड वैल्यूज दिखाएगा. तो वी रिक्वायर दैट ऑपरेटर्स आल्सो. इट इज गिवन सम इनपुट रिलेशन एज वेल एज सिलेक्शन कंडीशन अबाउट टुपल्स in the input relation. So selection condition true statement about the tuples attribute values such as like distance less than 100. ये होता है फर्स्ट क्वेरी ऑपरेटर. सेकेंड ऑपरेटर इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट प्रोजेक्शन. अगर हम लोग ने दो दो तीन तीन कंडीशंस देके हम लोग को उसका डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आर प्रोजेक्शन beside in an input relation and this operator require list of attribute. एक नहीं एक से ज्यादा जब ऑपरेटर यूज करके उसको डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है तो वी रिक्वायर प्रोजेक्शन. ऑल ऑफ विच शुड बी एट्रीब्यूट ऑफ स्कीमा ऑफ द इनपुट रिलेशन. जैसे मर्ज करना डेटा वगैरह. एट्रीब्यूट प्रोजेक्शन वर्क्स लाइक अ टुपले फॉर्मेटर. It passes through all the tuples of input but reshapes each of them in the same way. So output the relations of this operator has its schema only the list attributes given. We say that the operator projects onto this attribute. The most common way of defining queries in a relational database is through the SQL language. ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू ही पॉसिबल है जो क्वेरी लिखना होता है. तो SQL लैंग्वेज
यहाँ पे ओरेकल में भी आप एसक्यूएल यूज कर सकते हो, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, जहाँ चाहे आप एसक्यूएल यूज कर सकते हो. तो सिलेक्ट क्वेरीज डू नॉट क्रिएट स्टोर टेबल इन द डेटाबेस. सो दिस इज व्हाई द रिजल्ट टेबल हैव नो नेम, देयर आर वर्चुअल टेबल. आपको बताया कि सिलेक्ट क्वेरी डू नॉट क्रिएट स्टोर टेबल. आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टोर टेबल है, वो क्रिएट नहीं कर सकता है. इसके लिए हम लोग को अलग से तो वर्चुअल टेबल क्रिएट करना पड़ता है. तो क्रिएट टेबल के लिए हम लोग को तो वी हैव टू यूज वर्चुअल टेबल. द रिजल्ट ऑफ क्वेरी इज अ टेबल दैट इज शोन टू द यूजर हु एक्सपेक्टेड द क्वेरी. So whenever the user closes her or his view on the query, result is lost. Okay, जब भी आप क्लोज आते हो रिजल्ट लॉस्ट होने के चांस होते हैं. तो एसक्यूएल कोड फॉर द क्वेरी कैन बी स्टोर्ड फॉर फर्दर यूज. इसके लिए हम लोग को एसक्यूएल कोड देके उसको स्टोर करना पड़ता है. यूजर कैन री एग्जीक्यूट द क्वेरी अगेन टू ऑब्टेन द व्यू ऑन द रिजल्ट वंस मोर. और उसके लिए अगेन हम लोग को क्वेरी लिख के उसके अंदर का डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है. थर्ड क्वेरी ऑपरेटर, इट डिफर्स फ्रॉम द टू अबाव in that query in that it requires two input relations, but the operator is called join. जैसे joining हम लोग दो टेबल को join कमांड देके मर्ज करते हैं. there are two input relations, there are two input relation को joining कंडीशन देते हैं, वो इससे इक्वल है तो डेटा मर्ज करो. so that is gluing two tuples together. दो रिकॉर्ड्स को ग्लूइंग करते हैं इफ दे मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन. सो नंबर ऑफ ज्वाइन क्वेरी होते हैं, आपको पता है ज्वाइन क्वेरी होते हैं, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन. वी कैन ज्वाइन द फील्ड. जैसे ये फील्ड नेम इसके साथ मैच हो रहे हैं तो ये दोनों टेबल को हम लोग मर्ज कर सकते हैं और एक आउटपुट निकाल सकते हैं. तो ये हुआ आपका डीबीएमएस. क्लियर? हेलो? यस सर. अभी स्पैटियल डेटाबेस के साथ हम लोग किस तरह डीबीएमएस क्रिएट करेंगे वो उन्होंने बताया हुआ है, और उसके साथ क्वेरी लिखा हुआ है, क्या है वो सारी चीजें बताई. तो कैसे देखो, लिंकिंग जीआईएस एंड डीबीएमएस. लिंकिंग जीआईएस एंड डीबीएमएस. जीआईएस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड सपोर्ट फॉर स्पैटियल डेटा, थीमेटिक और एट्रीब्यूट डेटा. होता है इस तरह डेटा होता है. तो हमारा स्पैटियल डेटा होता है जहाँ पे बहुत सारे वेक्टर ग्राफिक्स की डेटा होते हैं, कोई रास्टर ग्राफिक्स होता है, थीमेटिक होते हैं, एट्रीब्यूट वैल्यूज होते हैं. इट स्टोर स्पैटियल डेटा, एट्रीब्यूट डेटा सेपरेटली, वो सेपरेटली स्टोर करता है. दिस रिक्वायर जीआईएस. हम लोग को जीआईएस रिक्वायर्ड होता है ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, क्या जो टेक्नोलॉजी है उसकी यूज करनी पड़ती है. तो दिस रिक्वायर इट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन द स्पैटियल डेटा रिप्रेजेंट रास्टर और वेक्टर. देयर नॉन स्पैटियल एट्रीब्यूट डेटा भी होता है. स्ट्रेंथ ऑफ जीआईएस टेक्नोलॉजी लाइज इन built-in understanding of geographic space and all functions that derived from this and for purpose such as the storage, analysis and map production. इससे built in understanding हम लोग को geographical space से मिलती है. वहाँ functions हम लोग यूज करते हैं that derive the purpose of the storage, analysis and map production. So GIS package themselves can store the tabular data. आपको खुद ही वो टेबुलर डेटा प्रोवाइड करता है, हम लोग को खुद को क्रिएट करना नहीं पड़ता है. और उस टेबुलर डेटा को दे डू नॉट ऑलवेज प्रोवाइड अ फुल फ्लेज क्वेरी लैंग्वेज. उसके अंदर कोई फुल फ्लेज क्वेरी लैंग्वेज नहीं है. उस टेबल को, टेबुलर डेटा को हम लोग क्वेरी डीबीएमएस यूज करके हम लोग उस नए एक्सट्रैक्ट डेटा हम लोग उसके साथ कर सकते हो. तो ये उन्होंने बताया हुआ है. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर GIS package themselves can store tabular data and they do not always provide a full-fledged query language to operate on the tables. So DBMS have a long tradition handling attribute. इसलिए DBMS का use लेना पड़ता है. It is administrative level, non-spatial, tabular, thematic data in a secure way for multiple user at the same time. जो ज़्यादा users at a time आते हैं उनके लिए वो data manage किया जाता है. Got it? Next. Yes, sir. DBMS offer much better table functionality since they are specifically designed for this purpose. So इसके लिए specifically DBMS ने data design किया हुआ है. Lot of data in GIS application is attribute data and so it made sense
to use the DBMS for it. For this reason, many GIS application are made up of external DBMS और data support. इसके लिए हम लोग externally DBMS का support लेते हैं for GIS application. So in this role, DBMS serve as a centralized data repository. सेंट्रलाइज डेटा रिपोजिटरी, जैसे डेटा वेयर हाउस सुना होगा, डेटा वेयर हाउस कंसेप्ट का पहले पहले टॉपिक होता था, पहले सब्जेक्ट होता था, जिसके थ्रू हम लोग डेटा रिपोजिटरी सिस्टम ओरेकल के अंदर 11G में काम करते थे. While each user runs her his own GIS software and obtain its data from the DBMS, this means that GIS had to link the spatial data represented with the raster or vector and then attribute data stored in that external DBMS. So with raster represented, each raster cell store a characteristic value. हर एक रास्टर डेटा का खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होता है. जैसे रास्टर डेटा में पिक्सल्स होते हैं, कलर होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें, शेप्स होते हैं, वो सारे शेप्स का वो डेटा रिप्रेजेंट करता है. दिस वैल्यू कैन बी यूज लुकअप एट्रीब्यूट डेटा इन अकम्पनिंग डेटा बेस टेबल, और उसका एक अकम्पनिंग डेटा बेस टेबल बनता है. देखो अलग अलग डेटा सोर्स दिए हुए, स्ट्रीट डेटा, बिल्डिंग डेटा, वेजिटेशन डेटा, ये वेक्टर डेटा हो सकता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, बराबर ना, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है. So in vector represent spatial object like point, lines, polygon are automatically given a unique identifier of the system, and this identifier is usually just called as a object ID or feature ID. उसको हम लोग object ID या feature ID बोलते हैं, and it is used to link the spatial object, और उसको link कर सकते हैं spatial object. मतलब जो vector data है उसको हमेशा पॉइंट्स, लाइंस, पॉलीगॉन में ऑटोमेटिकली यूनिक आइडेंटिफिकेशन के थ्रू क्रिएट किया जाएगा, और उसको आईडी दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट आईडी और फीचर आईडी बताए जाएंगे, राइट, with the attribute data in the attribute table, and the principle applied here is similar to that raster setting, but in this case each object has its own identifier. raster setting में भी सिमिलर इस तरह डेटा किया जाता है, but has its own identifier, लेकिन उसको आईडी हम लोग को देना था. आईडी इन द वेक्टर सिस्टम फंक्शन एज अ की, and any reference and id will the attribute database is a foreign key reference to the vector, और उसको foreign key से रेफरेंस दिया जाता है, वो वेक्टर डेटा होता है. मतलब सपोज यहाँ पे ट्रीज है, और ट्रीज के यहाँ पे हम लोग ने कुछ रास्टर डेटा देखा, तो उस आईडी को वेक्टर डेटा के आईडी से फॉरेन की क्रिएट किया जाता है और डेटा मैच किया जाता है. सो स्पैटियल डेटाबेस फंक्शनैलिटी बताया हुआ है यहाँ पे और स्टॉप किया हुआ है, तो यहाँ पे इतना पार्ट करके हम लोग रुक जाएंगे. So last, DBMS vendor have recognized the need for storing more complex data like spatial data. Main problem was that there is a additional functionality needed by the DBMS in order to process and manage spatial data, object oriented and object relational database not. तो यहाँ पे DBMS के वेंडर के थ्रू जो भी डेटा रिकॉग्नाइज होगा, स्टोर्ड होगा, वो कॉम्प्लेक्स डेटा रहेगा, और देयर मेन प्रॉब्लम इज दैट कि फंक्शनैलिटी जो हम लोग DBMS के साथ करेंगे वो प्रोसेस, ऑर्डर टू प्रोसेस एंड मैनेज स्पैटियल डेटा, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा होगा और ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा होगा, वे आर डेवलप फॉर जस्ट वन पर्पस. दिस एक्सटेंड स्टैंडर्ड रिलेशन मॉडल विद द सपोर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग स्पैटियल ऑब्जेक्ट. तो आपका जीआईएस में स्पैटियल फंक्शनैलिटी होने वाली है, और उस फंक्शनैलिटी के थ्रू हम लोग डेटाबेस कलेक्ट करके इंफॉर्मेटिव करेंगे. सो इट इज अ पैकेज आर एबल टू स्टोर स्पैटियल डेटा using range of commercial open source DBMS like Oracle, Informix, IBM, DB2, Cbase, PostgreSQL with the help of spatial extension. But GIS software have integrated database engines. उसके अंदर integrated database engine भी होते हैं. जैसे कौन से engine होते हैं, and they do not need this extension. वैसे engines के नाम आपको दिए हुए ArcGIS, QGIS जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी QGIS. So that is for example have database software built in, उसके अंदर built in software है. This means designer of GIS application can those whether to store the application data in the GIS or in the DBMS directly, वो inbuilt है, इसके लिए DBMS का यूज करने की जरूरत नहीं है. There are spatial database always known as a geo database. These are implemented directly in existing DBMS using extension software to allow them to handle that. इसके अंदर DBMS में convert करके हम लोग डेटा ले सकते हैं. So spatial database allow user to store, query and manipulate collections of spatial data. There are several advantages in doing this spatial data. It can be stored as a known as a geometric column. उसको geometric column बोलते हैं. And this means GIS can really fully DBMS sort of spatial data, making use of DBMS for data query. और उसके साथ हम लोग query लिख के हम लोग GIS application, GIS और spatial functionality कर सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ GIS tables का यूज दिखाया हुआ है.
ओपन जियोस्पैटियल कंसोर्टियम बताया हुआ और एक क्वेरी दिखाया हुआ है, देखो सिलेक्ट फ्रॉम river as a city as a c dot type metro and r dot गंगा एंड उसके अंदर हम लोग ने ये किया। तो दिस इज द वन एग्जांपल ऑफ दैट गिवन की क्वेरी है कि फाइंड आउट द मेट्रो सिटी विद इन 20 किलोमीटर, जो मेट्रो सिटी फाइंड आउट करना है जो 20 किलोमीटर ऑफ रिवर गंगा, 20 किलोमीटर रिवर गंगा के अंदर जो मेट्रो सिटी आते हैं उसके बारे में हम लोग को सर्च करना है। तो दे आर राइटिंग दैट लाइक दैट क्वेरी। वहाँ पे वेयर क्लॉज का काम है, तो जहाँ पे इन दिस केस वेयर क्लॉज वी आर यूजिंग, वहाँ कंडीशन है कि अगर हमारा टाइप मेट्रो, सी टाइप इज मेट्रो एंड आर नेम इज गंगा, मेट्रो और गंगा है उनका रिकॉर्ड दिखाओ, तो हम लोग को वो रिकॉर्ड उसके सिटी नेम और फ्रॉम रिवर टेबल और एज आर एज अ सिटी लिखा हुआ, रिलेशनशिप क्रिएट किया, सिटी एज अ सी करके दिया हुआ है और वो सिलेक्टेड सिटी हम लोग को दिखाई देंगे। ये क्वेरी आया समझ में? दिस पार्ट इट इज गिवन इन डीबीएमएस। हम लोग नेक्स्ट टाइम स्पैटियल रिप्रेसिंग एंड पोजिशनिंग वगैरह देखेंगे, आगे के पार्ट्स हम लोग सोचेंगे कि किस तरह हम लोग को करना है। यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल सेशन इस बुक में, टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है। प्रैक्टिकल सेशन का मैन्युअली हम लोग को प्रैक्टिकल सेशन का काम आएगा। गॉट इट? तो हम लोग के थर्ड यूनिट तक प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आगे के हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थर्ड यूनिट के बाद हमारा प्रैक्टिकल है थर्ड ए के बाद फोर्थ में वर्किंग विद एट्रीब्यूट्स हैं, वो हम लोग देखेंगे। ओके, वर्किंग विद एट्रीब्यूट्स एंड देन टेरेन डेटा, हिलशेड डेटा वगैरह हम लोग वो जो है वो प्रोजेक्शन करके देखेंगे। तो ये पार्ट हमारा अभी जो हुआ है उसके रिलेटेड फोर्थ और फिफ्थ दिया हुआ है। उसके बाद जॉइनिंग मीनिंग है, मैपिंग। चलो एनीवे, गिव मी अटेंडेंस एंड वी विल स्टॉप, टाइम हो चुका है। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही हम लोग को। यस सर। ये क्या सर लेफ्ट हो गए? सर लेफ्ट हो गया। ये चाय वाली होस्ट बन गई। I will continue this lecture. Chandan, हेलो, 1 to Yes, sir. 10 अटेंडेंस दो। सर रोल नंबर 2, रोल नंबर 9, 8 8, 9, 11, आगे बोलते जाओ फटाफट। 16, 19, 16, 17, 16, 17, 18, 19, आगे 21 to 30, So 21, 21, 24, 24, sir, 18, 18 हुआ, 29, 29, 26, 29, 26, 35, sir 32, 35, 31, 32, sir 38, sir 32, 35, 31, 38, 31, 39 sir, 38, 39, 31, 38, 39, 37 37, sir 50, 50, sir 48, 42, 32, sir 48, 48, 56, 50, 41, 55, 56, 48, 45, sir. 40, सर 53 sorry, 45, 41, 41, 47, 53, 54, 56, sir 44, 44, sir 56, कर दो, 47, 56, 51, 47, 47, 11 हो गया,
चलो कोई बाकी है? सर कल तो लेक्चर में बैठा था मैं, तो नहीं 56। कल का नहीं है ये रे, 5 तारीख का है। ओके ओके। ओके फाइन, चलो थैंक यू, लीव।